friends, my name is Anshu Pandey. I have secured All India rank 58 in MSc Nursing entrance exam in 2022, and I am Plan MSN subscriber of NurseEasy. And Congratulations. thank you, sir. And first of all, I want to thank to all my teachers from starting from nursery to till now. All have contributed to my success. I want to bow down to all my teachers and my parents also. Definitely, first my parents and my teachers, they come first. And sir, to talk about my study background, I was very average student during my 4 years of BSc nursing. And but one thing to say is that I was curious about learning, so that played a huge role to my success. Wow, great. मतलब आपने you have simplified, आपने बहुत easy बना दिया कि curiosity से हुआ, but I can understand there would be a lot of hard work behind all this. So my first question to you would be that Anshu, how many hours were you studying every day for at least 2 months before the exam? Yes, sir. First of all, I started with means any student who is starting that preparation can't go start in starting phase. They can't do only 8 to 10 hours. It's not possible. First, from day one, I started with 1 to 2 hours to make a study habit. Sitting for study for making that habit 1 to 2 hours. Then gradually, I tried to manage 4 hours a day, but there was the time when I was means whole day I used to study. Then I used to calculate how much I studied. Then it comes only 4 hours. But after some days, it came the day when I used to study for 8 to 10 hours. I managed that time because I was not doing anywhere. I was not in job practice or clinical practice. I used to study 8 to 10 hours. But to say few months before, means 25 days before the MSc Nursing entrance exam, I was selected for community health officer post. For that reason, I didn't get time to study 1 month before exam. I just used to manage only 1 hour maximum for my studies during that time. Okay. So let's talk about medical surgical nursing. How important? I mean, how would you rate it? Like, is it important? Is it average? मतलब किस तरीके से मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को अप्रोच करना चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम? Yes, sir. First, medical surgical nursing is a subject in which we get 4 subjects: anatomy, physiology, then medicine and surgery. 4 subjects we need to combine and study together. But I honestly say that NurseEasy is the only platform which provides this. To my knowledge, it is the only platform which provides this all 4 subjects in combination, and that also in a superb way. Your way of teaching is means it's really amazing. You means if any students want to build up their concepts, then they can opt for NurseEasy in a simple and simplified way, easy way you used to teach us. Means if I have seen teachers teaching that definition, etiology, then pathophysiology like that, but you teach in a way that you start from one point which imprints in our mind. Means if you sometimes you start with treatment, sometimes you start with cause. Means this thing I like very much about yours. And also I want to add to this is that the efforts which you have made to teach us, to make us understand, is means you have made a lots of effort in to teach ECG, sir. I want to say that you have drawn each ECG and shown us each photographs to make us understand well. You have put a lots of effort, and thank you, sir, for teaching in such a means wonderful way. Overall, if in one line I want to say that how is NurseEasy MSN teaching a subject of MSN, then it is sweet and simple and in concise way. Okay. So Anshu, my question here is that, like, to complete medical surgical nursing, how much time
did you, I mean, how much time did it take you? Because हर किसी का पढ़ने का स्पीड अलग अलग होता है, like you know, some people can cover more, some people can cover less. So like आपको कितना टाइम लगा करने में? सर मुझे means I used to combine two subjects, one MSN and one any minor subject like microbiology or biochemistry or nutrition, means two subjects. And by this I completed, means till now I have not completed all the videos, but I have completed 75 to 80 percentage in 2 months. Okay, And great, each great. day, yeah, sir, and each day studying 4 to 5 hours of MSN, it will do. It will cover. So I think that is fairly decent. Okay, Yes, so sir. कई चीजें ऐसी होती है मतलब in medical surgical nursing which are like tricky. I mean like I got lot of messages saying कि सर पेपर में ना options are very close. तो आपने वो जो Yes, close, sir. like every student can rule out 2 options out of 4. But then वो जो दो में Yes, से, sir. you know, how to get to the correct answer, that is my objective. I mean, that is what I like to teach to my students, how to rule out the options. But then in the actual exam जब आप कर रहे थे तो मतलब डर लग रहा था या you were like, you know, I can do it. मतलब वो आपने फोकस कैसे किया कि वो रूल आउट कैसे करे ऑप्शंस, लाइक आपने मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं क्वेश्चन लंबा कर रहा हूँ, मतलब कई का क्या क्या करते हैं कई बच्चे कि भाई दो में से जो सही लग रहा है उसको मार्क कर दिया, and then there are some students who will say कि नहीं मैं उसको analyze करूंगा, and time is also short. तो I mean what was Anshu's approach in the exam to handle such, you know, tricky choices वाले questions? Yes, sir. First of all, these tricky questions means we can, as you said, sir, we can easily rule out two options, but we stuck onto two other options which are left. Then to rule out means to choose the best answer. I say best answer. You need to have the concepts clear, and you teach in a way that concepts are clear. But here, one thing also I want to say is that कि ये सिर्फ मीन्स 4 महीने या 6 महीने की पढ़ाई नहीं होगी। ये लॉजिक हमको तब से आता है जब हम डे वन ऑफ कॉलेज से जब हम पढ़ते हैं, देन मतलब हम कैसे अपना 4 साल बिताते हैं, कैसे हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में हम कैसे चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ये सब वहां से भी आता है। 100% हम 4-6 महीने में नहीं पढ़ सकते हैं। और सर टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ इज आई यूज टू स्टडी मीन्स 5 o'clock our college used to end up. Then I have worked hard during my 4 year of nursing. Before COVID time, I used to study sir 5:30 to 7:30 in library. I was the girl who used to study. मीन्स इसलिए नहीं पढ़ती थी कि मुझे एग्जाम में रैंक तो लाना वो अलग बात है सर, बट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई यूज्ड टू स्टडी कि मुझे मेडिसिन की बुक पढ़नी है, हैरिसन हुआ, मीन्स सम ओपी घाई हुआ, एंड विलियम्स वो ऑब्स्टेटिक्स के लिए। तो सर मैं पढ़ती थी, वो बुक्स को भी मैंने रिफर किए हैं, बट नॉट पूरे 50% नहीं पढ़ लिया, 5 to 10% ही पढ़ा है। बट कोई ऐसा टॉपिक जिसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है या इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो हम अपने 4 years ऑफ नर्सिंग को उस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि हम डीप स्टडी करें, क्योंकि अपने पास उस टाइम होता है इतना डीप स्टडी करने का। तो सर ये लॉजिक वहां से भी आता है। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे कि लाइक एग्जाम जब आपका हो गया, पूरा हो गया, तो तब मतलब आपकी फीलिंग्स क्या थी, मतलब पेपर देने के बाद में हाउ वर यू फीलिंग? एक होता है ना कि भाई पेपर दिया तो लगता है कि यार पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा, या आपको लग रहा था कि ठीक है मैंने कर लिया अपनी तरफ से बेस्ट किया, तो हाउ वर यू फीलिंग? सर आई वाज रियली, मतलब मुझे डर ही लग रहा था होगा कि नहीं होगा। आई वाज नॉट श्योर, एंड आफ्टर रिजल्ट आल्सो केम द नेक्स्ट डे आल्सो आई कंफर्म माय रोल नंबर। मींस आई वाज नॉट एबल टू बिलीव दैट आई गॉट सच रैंक। अच्छा लगा सर, लेकिन ये क्योंकि 1 महीने पहले से पढ़ाई छूट गई थी, क्योंकि मैं ड्यूटी आवर्स में बिजी हो गई थी, तो आई वाज लाइक हाँ डिसेंट रैंक है, एंड आई वाज नॉट एबल टू बिलीव दैट सर। ओके ओके, सो मतलब हम वो स्टूडेंट वाला जो एक फीलिंग है वो हमारा कभी जाता नहीं है, मतलब एग्जाम कैसा भी जाए हम एज स्टूडेंट, हम हमेशा स्टूडेंट रहते हैं, चाहे मतलब हम मेडिकल स्टूडेंट्स रहे हैं, बट वो है कि वो डर हमेशा ही रहता है हमारे फील्ड में, बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा है। नहीं, थैंक यू अंशु, आपने बहुत ही हाँ ऑनेस्ट एंड आपने बिल्कुल जेन्युइन बातें बोली। एंड एक आपके जूनियर्स का मैसेजेस आपको आ रहे होंगे कि दीदी मेरे को बेस्ट एडवाइस बताओ, क्या करें, है ना, शॉर्टकट बताओ।
तो उनके लिए आप एक छोटा सा मैसेज दे दीजिए कि उन्हें क्या करना चाहिए। यस सर, यस सर, ये शायद थोड़ा मैं लंबा खींचूं इसे, बट सर फर्स्ट थिंग आई वांट टू से दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, इट इज द रियलिटी। मेरी भी स्टोरी में आई हैव नॉट आई मेनी टाइम्स मुझे लगा शॉर्टकट मिल जाए, सिर्फ एमसीक्यू करूँ या नोट्स पढूं, दोनों कैसे होगा, लेकिन शॉर्टकट नहीं है। आप मेहनत करते रहो एंड यू विल गेट इट टू द गोल विच यू हैव डिसाइडेड। Second thing, where famous quote is that from Three Idiots movie that काबिल बनो कामयाबी झांक मार के पीछे आएगी। That is the true point, sir. उसे मैंने मतलब ये चीज बहुत ही गहराई से मैंने परखी है। काबिल जब हम बनते हैं तो कामयाबी आती है हमारे पास। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 लाख स्टूडेंट दे रहे हैं एग्जाम और उसमें से सिर्फ 1000 सिलेक्शन हो रहा है, then we have to make ourselves capable of that we are deserving something better than 99,000। that काबिलियत लाने के लिए हमें हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट नहीं है। एंड टू द पॉइंट के जूनियर्स को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सोच के ही रखा है। 5 पॉइंट है जो कि मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट इज you are starting a preparation and you build up your concepts। नोट्स मेकिंग इज द वे, ओनली वे। आप नोट्स बनाओ, खुद से बनाओ। कोचिंग है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपका कहाँ तक, किस लेवल तक पढ़ना है वो पता चल जाता है। कोचिंग नहीं भी हो पा रहा आपसे तो कोई बात नहीं, आप सॉन्डर्स उठाओ, उसमें से एनप्लेक्स की सॉन्डर्स उठाओ, उसमें हर सब्जेक्ट के अच्छे से नोट्स दिए हुए हैं। आप लाइन टू लाइन उसे डीप में स्टडी कर सकते हो। नोट्स अपने रेडी करो, कहाँ से, कहीं से भी रेडी करो आप। देन सेकेंड थिंग इज दैट रिवीजन। वो नोट्स बना लेने से काम नहीं हो जाता, उसे रिवाइज भी करना पड़ता है। मुझे ये बोरिंग लगता था, लेकिन ये बोरियत हम मीन्स कैसे हम हटा सकते हैं, तो या तो सिर्फ वीडियो देखो या किसी को पढ़ा दो, वीडियो कॉल पे या वॉइस कॉल पे पढ़ा दो किसी को, ऐसे हम कर सकते हैं, लेकिन नोट्स रिवाइज करना इज मैंडेटरी। देन थर्ड कम्स इज प्रैक्टिस एमसीक्यू। सर वन थिंग इट्स सेटफुल, वेरी सेटफुल टू से दैट आज तक नर्सिंग की कोई ऐसी बुक नहीं बनी जो ऑथेंटिक हो, जिसमें मिस्टेक्स ना हो सर। इट्स लाइक आनी चाहिए फ्यूचर में, सब्जेक्ट वाइज बुक आनी चाहिए जो कि ऑथेंटिक हो, जिसमें मिस्टेक्स वेरी मिनिमल हो। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं और उसमें मिस्टेक्स लगता है तो हमें उस बुक से विश्वास उठ जाता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या गलत है। तो प्रैक्टिस एमसीक्यू के लिए एक और पॉइंट मैं जो बोलना चाहूंगी इज दैट आप दिन में 1000 एमसीक्यू मत करो, दिन में 200 एमसीक्यू मत करो, कोई बात नहीं। 3 घंटे आप बैठ रहे हो, 3 घंटे बैठने की आप प्रैक्टिस डालो, बराबर है। लेकिन 200 एमसीक्यू कर रहे हो ये जरूरी नहीं है, आप 50 एमसीक्यू ही करो, क्योंकि मैं इतने ही कर पाती थी। लेकिन उसे ऐसे इस तरीके से करो कि उसके जो 3 गलत ऑप्शंस हैं वो क्यों गलत हैं, वो मतलब हम तो बोल नहीं सकते कि जो क्वेश्चन है वैसा सेम आएगा। जो 3 ऑप्शन जो गलत है उसमें से क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो मतलब एमसीक्यू इस तरीके से करो कि आपको चारों ऑप्शन के बारे में क्लियर हो, भले ही कम एमसीक्यू करो, ज्यादा टाइम लो, लेकिन आप इस तरीके से एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाहो तो ज्यादा अच्छा रहेगा वो। देन लास्ट कम्स के आप नेगेटिव मार्किंग से बचो। एग्जाम के टाइम पे जितने क्वेश्चंस आते हैं उतने ही करो अटेम्प्ट, रिस्क लो। जिस 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन वैसे मार्क करके आ जाओगे तो वो काम नहीं चलेगा, उससे हमारी रैंक पीछे हो सकती है। तो रिस्क लो, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लो। एंड लास्ट थिंग इज दैट के अपने आप को मोटिवेटेड रखो। मैं कैसे मोटिवेट रखी थी अपने आप को कि मैं जैसे कि यूट्यूब पे आते हैं मेडिकल पीजी स्टूडेंट्स के इंटरव्यूज आते हैं, तो वो कैसे पढ़ते थे। एंड बहुत सारे सर हैं, बोन टीचर हैं डॉक्टर अब्बास अली सर, देन प्रेप लेडर के सर हैं डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी सर, स्पार्श गुप्ता सर, आप डॉक्टर मारवा सर, देन साक्षी अरोड़ा मैम। मीन्स ये सब फैकल्टीज के
आप मोटिवेटिंग जो भी वीडियोस हैं यूट्यूब पे आप उन्हें देख सकते हो, तो उससे क्या आप मोटिवेटेड फील करोगे। एंड हियर इस प्लेटफॉर्म मिला है, तो अपने टीचर्स को मैं थैंक्स करना चाहूंगी सबसे पहले, कि मेरी निक्सी मैम एंड जॉबिन सर, उन्होंने मुझे बहुत मतलब मेरे लॉस में मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एंड यस सर, यही बोलना है। थैंक यू सबको, एंड टू ऑल माय टीचर्स, थैंक्स टू ऑल। एंड आई हैव वर्कड हार्ड, बट इट मीन्स कंसिस्टेंसी भी इम्पोर्टेंट होती है, तो हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ टीचर्स, यही बस मंत्र है सक्सेस का। नहीं नहीं, आपने बहुत बहुत ही पुख्ता पॉइंट्स रखे हैं और बहुत ही पर्टिनेंट पॉइंट्स रखे हैं जिसे बोलेंगे इंग्लिश में। एंड आई विश यू द वेरी बेस्ट फॉर योर सक्सेस एंड फॉर योर फ्यूचर करियर। हमारी तरफ से नर्सिजी की टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके परिवार को भी। थैंक यू सो मच अंशु फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड हैविंग दिस शॉर्ट डिस्कशन विद अस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।